guys, as we studied in a symmetry section, whenever this type of circuit is given to us, then we apply the rules directly. Okay, but first you decide this which symmetry is helpful to you for a given circuit, parallel or perpendicular. Okay, so अगर ऐसे कोई circuit है, so what we have to find the RAB, मतलब equivalent resistance between A and B. So the resistance A and B. So here is the point A and here is the point B. So right now if you see this circuit, then this circuit is symmetry on this side like this. See, whatever the given right hand side, the same as given a left hand side. So you draw the one line in such a way, so this right hand side and left, you just divide the circuit in right hand side and left hand side. So you draw this one line, so the circuit is divided is left hand side and right hand side. So that's one. So just tell me, this is parallel to AB or perpendicular to AB? So this actually, see, first you find the symmetry. Okay, so right now the symmetry is right hand side and left hand side, simple way. So अगर ऐसे सिमेट्री है तो फिर इस लाइन को देखो, अब तो पैरेलल हुई, तो यहाँ पे कौन सी लाइन हुई? पैरेलल लाइन. So in case of parallel line, the potential on the both side of this one is same. Potential on the both side of this line is same. तो मतलब यहाँ पे जितने रेजिस्टेंस दोनों ही साइड आते हैं, देखो ये रेजिस्टेंस में एक पॉइंट इस साइड एक पॉइंट इस साइड है, ये रेजिस्टेंस में एक पॉइंट इस साइड एक पॉइंट इस साइड है, तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा. मतलब ए पोटेंशियल आप मान के चलो C और इस पॉइंट को लो D, यहाँ पे है सपोज E और यहाँ पे है सपोज F. Then as per the parallel symmetry in circuit, so here we write the simple way, VC is equal to VD होगा and V is equal to VF होगा. ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा. If this both are same, then this current through this resistance is zero and current through this resistance is zero. Means you just remove these two resistance from the circuit. आप इन दोनों रेजिस्टेंस को सर्किट में से निकाल दो, बाकी की सर्किट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, तो फिर आपका आंसर इजीली मिल जाएगा. देखो सिंपल है, A and B. I'm just drawing the same figure again. So here A, here is the B. One resistance. So one resistance is here. Now this one B to C. So B to C, C to E, and A to E. Okay. So here this point is E. So R. This is remove from this one, and this one also remove from the circuit. So now B to D. So this is D. Now D to F and A to F. So this is what F and R. Okay. So this is R. Here it is R like this. See, everywhere it is given. Now this resistance is removed, C2D and E2F, C2D and E2F. Now it is quite easy to solve out. See, these three are in series, these three are in series, and all are in parallel. ऐसा ही कुछ होगा. देखो यहाँ पे B से B और A को ही देखना है, बाकी पॉइंट्स को नहीं देखना है. तो B से B और A को काउंट करो तो A तीन रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, A तीन रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, उसके बाद सभी पैरेलल में होंगे. मतलब पूरी सर्किट कुछ ऐसी हो जाएगी. यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ए तीनों को सीरीज में कनेक्ट करो तो A और B के बीच में R प्लस R 3R, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया 3R. कौन सा आया? A to E, E to C, C to B. ओके, सिमिलरली A to F, F to D, D to B, R प्लस R 3R, अगेन 3R. सो ये रेजिस्टेंस भी 3R और ये तो R है ही. देखो एक का इजी रहेगा कि नहीं ये सोल्व करने के लिए. Now this circuit is converted into this one. Very simple. Now what is the RAB? Three resistors are in parallel. So if three resistors are in parallel, apply this rule. 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So what is 1 upon equivalence? So 1 upon RAB is equal to 1 upon R1 means 1 upon 3R plus 1 upon R2 means 1 upon R plus 1 upon R3 means 1 upon 3R, and simplify this one and you get the answer. Okay, so calculation is in homework. कैलकुलेशन होमवर्क करना है और इसका आंसर कुछ जो है वो ऐसा रहेगा. आफ्टर कैलकुलेशन, सी आई एम जस्ट एडिंग टू दिस आंसर, इट्स अ 3R/5. आप अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो फिर आपका आंसर जो है RAB ओके आ जाएगा 3R/5. तो अब करना होमवर्क में हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने सिमेट्री यूज की. अगर मैं ये पॉइंट्स भी चेंज कर देता हूँ तो भी सिमेट्री चेंज हो जाएगी. देखो, इफ आई एम चेंजिंग माई पॉइंट्स, same circuit I am drawing here, but now I want RAB again.
but this A point is here and B point is here, so you just find the symmetry again. अगर यहाँ पे अभी अगर ऐसी लाइन ली हुई है, ऐसी लाइन, तो यही सिमेट्रिकल लाइन है, लेकिन पॉइंट्स ए और बी यहाँ पे है, ओके, तो सिमेट्रिकल लाइन तो वही रहेगी, देखो तो जहाँ पे सिमेट्री है वहीं पे सिमेट्री तो वही रहेगी, लेकिन ये ए बी लाइन के लिए अभी ये लाइन कैसी परपेंडिकुलर है, सिमेट्री लाइन तो यही थी, वहां पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे ए बी है तो फिर ए बी पैरेलल होगी, लेकिन यहाँ पे ए बी है तो अभी ये लाइन कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन। और परपेंडिकुलर लाइन का रूल क्या बोला मैंने, द पॉइंट्स ऑन द लाइन हैविंग अ सेम पोटेंशियल, पॉइंट्स ऑन द लाइन हैविंग अ सेम पोटेंशियल, तो पॉइंट्स रखो यहाँ पे, चलो तो इस लाइन पे जितने पॉइंट्स आते हैं उतने इंडिकेट करो, तो ये पॉइंट्स आता है सी, ये पॉइंट्स आता है डी, और कोई पॉइंट्स नहीं आता है, देखो तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एज पर द परपेंडिकुलर सिमेट्री VC इज इक्वल टू VD, मतलब कि इस रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, 0। अभी इसको नहीं देखना, यहाँ पे ए बी यहाँ पे था, मतलब बैटरी आप यहाँ पे कनेक्ट करने वाले थे पहले केस में, ऐसे कुछ, अभी मैं बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ दूसरे केस में, ठीक है, तो यहाँ पे करंट आई एंटर होने वाला है, और यहाँ पे अगर आप बात कर तो यहाँ पे करंट एंटर होगा, इसलिए इस तरह से आपको काउंट करना है कहाँ पे बैटरी कनेक्ट होगी, उस तरह से कहाँ पे सिमेट्री लगने वाले, तो इस तरह अगर इस दोनों का सेम है तो उसको निकाल दो, बाकी सर्किट ऐसे ही ड्रॉ करो, इसको निकाल दो, बाकी सर्किट ड्रॉ करो, चलो तो बाकी सर्किट अगर आप ड्रॉ करोगे तो ए और बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, उसके बाद ए 3 रेजिस्टेंस आएंगे, तो 1 2 3, ए 3 आ गए, ओके, ए और सी में ड्रॉ करना है तो फिर यहां पे ऐसे होगा, और बी और सी के बीच में भी है, तो ए और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ड्रॉ करने में, चलो ड्रॉ करने में थोड़ा इजी है, चलो हो गया ना, ए बी, ए पॉइंट हुआ सी, और यहाँ पे भी ए है तो इसको भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दो, देखो अभी ए पॉइंट में ये रेजिस्टेंस निकल गया, नाउ इट इज क्वाइट इजी, सी ये दोनों किसमें है, सीरीज में, उसके बाद ये पैरेलल में, उसके बाद ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और सभी पैरेलल में, तो आप काउंट कर सकते हो, तो मतलब सभी रेजिस्टेंस आ रही है, तो कैलकुलेशन में कर लेना होमवर्क में, बाकी का जो कैलकुलेशन है वो होमवर्क में। प्रॉब्लम यही था, यहीं पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि सीरीज है कि पैरेलल, अभी क्वाइट इजी है, देखो ये दोनों सीरीज, उसके बाद ये पैरेलल, ये तीनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और बाद में सब पैरेलल, ठीक है, तो इस तरह से आप इसका भी आंसर जो है फाइंड कर सकते हो। अगर मैं देख लेता हूँ इसका आंसर लिखा है तो फिर मैं आपको बोल देता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है, अदरवाइज आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर होता है 2R/15 समथिंग, ओके, इसका फाइनली आप जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर हो जाएगा 2R/15, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो, और जो कैलकुलेशन बोला है वो आप घर पे कर लेना, ठीक है, नोट करो। Okay, now comes to this next example of the symmetrical circuit. This type of circuit is given to us A and B points. I am just drawing the symmetrical line. यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर आपने परपेंडिकुलर लाइन बनाई तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है परपेंडिकुलर लाइन पे, अगर रेजिस्टेंस कोई परपेंडिकुलर लाइन पे नहीं है तो फिर उसके आप निकाल भी नहीं सकते, तो यहाँ पे आप ड्रॉ भी करोगे तो फिर हेल्पफुल नहीं रहेगी। मैंने बोला था कोई प्रॉब्लम ऐसा होगा जिसमें दोनों ही सिमेट्री यूज़ कर सकते हो, लेकिन किस सिमेट्री को यूज़ करना हो आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया तो वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, देखो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो दोनों साइड सर्किट तो सेम रहेगी लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर कोई यूज़ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने कौन सा ड्रॉ किया, सिमेट्री लाइन, हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की, पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के दोनों साइड पोटेंशियल सेम रहता है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को मान लो C, इस पॉइंट को मान लो D, इस पॉइंट को मान लो E, इस पॉइंट को मान लो F, तो दोनों साइड सेम रहता है। इसके दो साइड C और D है तो इसमें क्या हो जाएगा, VC इज इक्वल टू VD। E और F है तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू VF। इसमें आपको मतलब सर्किट काफ़ी बड़ी है तो आपको फोल्ड करना होगा, मतलब A C और D को एक ले लो, E और F को भी एक ही ले लो, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, देखो यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम, दोनों पॉइंट सेम ही हुए,
इक्वी पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ टेक द सी एंड डी बोथ आर टुगेदर, ई एंड एफ बोथ आर टुगेदर। तो यही सर्किट को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो यहाँ पे ए है, ये सी और डी को साथ में ले लो, तो सी और डी साथ में आ गए। यहाँ पे बी है, ओके, ई और एफ को साथ में ले लो, तो ई और एफ साथ में आ गए, हो गया। तो अभी ये दोनों रेजिस्टेंस को आप जो कनेक्ट करोगे ऐसे, देखो यहाँ पे मैं साइड में एक ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर ये रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करोगे ए दोनों को, तो क्या हो जाएगा, देखो ए पॉइंट्स को आप ए ले आओ, ए है, और यहाँ पे सी और डी को साथ में लिया, दोनों रेजिस्टेंस ही आएंगे यहाँ पे। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकेंड रेजिस्टेंस। थोड़ी अच्छी फिगर बनाता हूँ तो आपका आइडिया क्लियर हो जाए। एक में जो होता है वो सब में होगा। यहाँ पे सी और डी को साथ में लिया, तो एक रेजिस्टेंस है तो है ही, और सी भी यहाँ पे आ गया, तो मतलब दूसरा रेजिस्टेंस भी वहां पे आ गया। तो आर और आर पैरेलल में क्या होते हैं, R/2। तो मतलब यहाँ पे जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R/2। सिमिलरली आप यहाँ पे भी वही अप्लाई कर सकते हो, है ना, आर और आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, R/2। मैंने दोनों ही साथ सेम ले लिए पोटेंशियल, तो इसका कुछ ऐसा आंसर होगा। तो सिमिलर यही कंसेप्ट में पूरी सर्किट भी अप्लाई करता हूँ। जितने भी रेजिस्टेंस इस साइड है उतने उसके ऊपर ऐसे ही आएंगे, फोल्डिंग होंगे। तो ए और आर पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल में हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, R/2। ये दोनों भी पैरेलल में, R/2। ये दोनों भी पैरेलल में, तो R/2 है, तो उसका मतलब जो भी रेजिस्टेंस होगा हाफ कर दो, जो भी रेजिस्टेंस है उसका हाफ कर दो। तो यहाँ पे ए ड्रॉ किया हुआ है, तो ये R/2 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। यहाँ पे ए आर और ए आर मिल के R/2, ए आर और ए आर मिल के R/2। देखो मैंने मतलब पोटेंशियल सेम है, VC और VD सेम हुआ, तो मैंने दोनों पॉइंट्स को ऐसे साथ में ले लिए, VF हुआ, दोनों पॉइंट्स को ऐसे मैं से यहाँ पे साथ में ले लिए। तो मतलब ये दोनों साथ में है, तो रेजिस्टेंस भी साथ में है ना, पैरेलल में होंगे। ऐसे अगर आप रखते हो, देखो यहाँ पे ये R है और ये R है, अगर ऐसे आपने यहाँ पे फोल्ड के ऐसे रखा, तो फिर दोनों साथ में रहेंगे, मतलब ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट, तो दोनों पैरेलल में कनेक्शन में। देखो अगर ऐसे रहते तो सीरीज में आते, लेकिन यहाँ से आपने फोल्ड करके ऐसे लिया, तो यहाँ एक एक्चुअल कैसे है, पैरेलल में। सिमिलर ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, सभी पैरेलल में आ गए, मतलब ऐसे फोल्डिंग करके, इसलिए इसको फोल्डिंग मेथड भी बोलते हैं। पैरेलल सिमेट्री को हम फोल्डिंग भी कहते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, R/2 सभी जगह पे हो गया। देखो इस सर्किट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। R/2 को मिलाओ, R/2 को मिलाओ, R और R को मिलाओ, R/2 फिर से हो गया। तो मतलब इसका आंसर R/2 R एंड R/2 सीरीज में आ गए। तो इसका सिंप्लीफिकेशन, इस सर्किट का सिंप्लीफिकेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब बाकी का जो है आंसर आप लिख देना होमवर्क में, क्लियर है। मतलब आपको यही सीखना है कि सिमेट्री कैसे यूज करनी है। अगर आप फाइनली आंसर इसका फाइंड करोगे तो आपका आंसर इसमें आता है, एक बार देख लेता हूँ कौन सा प्रॉब्लम है। ओके, इसका आंसर आता है 2R/3। मतलब जब काउंट करोगे तो फाइनली RAB आ जाएगा 2R/3, ठीक है। तो इस तरह से आपको, यहाँ पे मैंने R/2 क्यों किया, क्योंकि यही मेथड है R/2, है ना, इस पॉइंट सेम है, तो इस तरह से कुछ इसका सर्किट बनेगी। तो R और R पैरेलल में आएंगे तो R/2 हो जाए, इसलिए मैंने सभी रेजिस्टेंस ऐसे लिखा है, इसलिए इसको फोल्डिंग भी बोलते हैं। अगर आप किसी भी सर्किट को फोल्ड करते हैं तो रेजिस्टेंस हाफ कर देना है, रेजिस्टेंस कैसा कर देना, हाफ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये कुछ नई सर्किट आई, और मतलब सिमेट्रिकल तो ऐसे ही कुछ है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है ना। यहाँ पे ए पॉइंट्स, यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसमें अप्लाई तो दोनों ही फिर से हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ए लाइन ड्रॉ करते हो तो भी सिमेट्रिकल सर्किट है, ए लाइन ड्रॉ करते हो तो भी सिमेट्रिकल ही सर्किट है, लेकिन कौन सी लाइन ड्रॉ करना इजी रहेगा, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, वो इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन पे रेजिस्टेंस आते हैं तो फिर वो निकल जाएंगे, क्यों, उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुई परपेंडिकुलर लाइन। अगर ए परपेंडिकुलर लाइन है तो फिर सी पॉइंट्स ले लो, डी पॉइंट्स ले लो, ई पॉइंट्स ले लो, ए पॉइंट्स के रेजिस्टर पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, VC, VD
V अगर सेम हो जाएंगे मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उसको निकाल दो। तो फिर बाकी की सर्किट जो है, जैसे हमने यहाँ पे कोई निकलता नहीं था लेकिन यहाँ पे ऐसे पैरेलल में आ जाते हैं, है ना, तो सर्किट थोड़ी इजी रहते हैं सॉल्व करने में। सिमिलरली यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को निकाल दो तो आपका आंसर क्या होगा, देखो तो आपका आंसर हो जाएगा कुछ ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। तो ए रेजिस्टेंस को नहीं निकालना है तो उसको ड्रॉ करो, ए इसको भी नहीं निकालना है तो इसको ड्रॉ करो, इसको भी नहीं निकालना, ड्रॉ करो, इसको निकालना है तो नहीं ड्रॉ करना, इसको रखो, चलो ड्रॉ किया, इसको भी रखो, ड्रॉ किया, इसको भी रखो, ड्रॉ किया, इसको नहीं रखना है तो निकाल। चलो इजी है, चलो ये प्रॉब्लम कितना इजी होगा देखो, है ना। तो आप ये भी प्रॉब्लम अब होमवर्क में कर लेना। आंसर तो सिंपल है, आर और आर पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, 2R 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 2R/3। इसका आंसर फाइनली क्या आएगा जब कैलकुलेट करोगे तो 2R/3। इसका भी यही आता है 2R/3, R/2R/2, इसका भी यही आता है। चलो तो मतलब ऐसी कुछ सर्किट है, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से सिमेट्री अप्लाई करके सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो एग्जांपल को। ओके गाइस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, अगेन द सिमेट्रिकल प्रॉब्लम। ओके, सिमेट्रिकल सर्किट प्रॉब्लम। Here we are using the symmetry, but this is some different type of problem. If consider this circuit and you have to finding out the RAB, what you have to find out RAB in this circuit means equivalent resistance between A and B. Then what are you doing here? See, parallel line is not possible क्योंकि एक ही साइड सर्किट है, दूसरी साइड तो सर्किट ही नहीं है। तो only we have one option, which one? Perpendicular line. So if you draw the perpendicular line, चलो आपने perpendicular line ये बनाई, but problem is what? There is no any resistance on perpendicular line. See, then potential is same but resistance is present, then some current is flows through it, then we apply this rule, potential is same. Here we what we are doing actually, here we are using the perpendicular symmetry and in this case mirror, we using this mirror. Consider this is the mirror, suppose आप इसको perpendicular line को mirror मान लो, ऐसे इसकी दूसरा नेम है मिरर सिमेट्री। ओके, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी अप्लाई किया है हमने यहाँ पे, यही अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता तो हम ये डायरेक्टली अप्लाई करके उसको सॉल्व आउट कर सकते थे, लेकिन कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। तो इस केस में क्या करना है आपको, मिरर अप्लाई करना है। अगर आपने मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया तो फिर क्या होगा, जहाँ पे जंक्शन फॉर्म हो रहा है वहाँ पे ये अप्लाई करना है, जहाँ पे जंक्शन फॉर्म हो रहा है, wherever the junction is formed you just concentrate on at the junction, क्योंकि वहां पे ही करंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सो मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर मेथड क्या है, जितना करंट लेफ्ट हैंड साइड से एंटर हो रहा है उसके सामने की ब्रांच में उतना ही करंट लीव होगा। तो वॉट एवर द करंट एंटर इनटू द मिरर, द सेम करंट इज लीविंग फ्रॉम द मिरर, ओके, इन द सिमिलर ब्रांच और इन अ सिमेट्रिक ब्रांच। तो यहाँ पे आप मान लो कि कितना करंट एंटर हुआ, I1, तो उसकी सिमिलर ब्रांच A है तो वहां पे कितना करंट लीव होगा, I1 ही लीव होगा। ओके, नाउ ऑन दिस इन दिस ब्रांच कितना करंट मिरर में एंटर हुआ, मान लो कि I2, हाउ मच करंट इज एंटरिंग हियर, I2। सो उसकी सामने की ब्रांच है वहां पे कितना करंट लीव होने वाला है, I2 ही लीव होगा। आपको ऐसा ही काम, मतलब ये जंक्शन जहाँ पे फॉर्म हो रहा है जितना करंट एंटर हो उतना करंट लीव हुआ सिमिलर ब्रांच में, मतलब कि I1 ऐसे सीधा पास हो गया, I2 ऐसे सीधा पास, मतलब ये दोनों यहाँ पे जो जंक्शन है, मान लो कि J इज अ जंक्शन फॉर अस। सो एट द जंक्शन आप इस दोनों ब्रांच को सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि जितना करंट यहाँ से एंटर उस ब्रांच में इतना ही करंट जा रहा है, करंट चेंज नहीं हो रहा है। अगर जंक्शन पे करंट चेंज होता है तो उसको जंक्शन बोलते हैं, लेकिन इस ब्रांच का सेपरेट करंट है, इस ब्रांच का सेपरेट, I2 इस ब्रांच का है, I1 इस ब्रांच का है, तो फिर सेपरेट दिस बोथ दिस ब्रांच एट जंक्शन। सो बाय द मिरर सिमेट्री वी हैव टू सेपरेट द बोथ branches at the junction. What is the meaning of this? Actually junction is not formed, actually junction is not formed। यहाँ पे जंक्शन फॉर्म ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि वहां पे जंक्शन है लेकिन एक्चुअली नहीं है।
क्योंकि जंक्शन है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। I1 एंटर हुआ, I1 चला गया, I2 एंटर हुआ, I2 चला गया, तो फिर जंक्शन तो फॉर्म ही नहीं हुआ। अगर यहाँ पे I1 एंटर हुआ, यहाँ पे I2 एंटर होता है तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट करंट होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, बाय द यूजिंग ऑफ मिरर सिमेट्री। क्योंकि मिरर सिमेट्री में ऐसा है, जितना एंटर उतना लीव होता है। ऐसा ही ये कंसेप्ट से आप चलोगे तो वहाँ पे जंक्शन को आप सेपरेट कर दो, तो फिर आपकी जो सर्किट है नहीं, वो सर्किट कुछ ऐसे फॉर्म होगी। देखो, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, यहाँ पे एक स्ट्रेट ब्रांच, तो एक स्ट्रेट ब्रांच आर एंड आर। यहाँ पे आप मान लो कि सी पॉइंट है, तो यहाँ पे सी पॉइंट, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, ड्रॉ कर लो। यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस। ओके, नाउ दिस वन, यहाँ पे जंक्शन था, है ना, लेकिन अभी आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। आपने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, देखो। Now you separate this junction, so R, 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 everything is given here. See, now it is easy to solve. These two are in series, these two are in series, these two are in series. इसको आप solve कर लो और आपको RAB मिल जाएगा. After calculating your answer, after calculating this one, you get this answer. Okay, in this case you get this answer is what, 6R by 5. मतलब इसका अगर आप आंसर फाइंड करोगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 6R by 5. So this is the mirror method. Miss, by using this method you get this answer. Okay, now comes to this next one. Exactly similar problem. Here also we get this RAB. आपको RAB फाइंड करना है। आप मान लो कि सभी रेजिस्टेंस आ रही है, सभी रेजिस्टेंस कौन से हैं, आर, सेम मानते चलते हैं। So here if you draw the parallel symmetry, not possible, only single side circuit है, तो फिर आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर से ही चलना होगा। So perpendicular line, so if you draw the perpendicular line, then you just see here on the line there is no resistance. अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो निकालोगे क्या? So यहाँ पे भी फिर से मिरर सिमेट्री यूज करने, so by the using of mirror symmetry, और मिरर सिमेट्री कहाँ पे लगानी है, जहां पे जंक्शन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जंक्शन फॉर्म हो रहा है, देखो। सो जंक्शन पे आप अगर मिरर सिमेट्री अप्लाई करोगे, तो मान लो कि यहाँ पे करंट I1 एंटर हुआ, तो इसकी अपोजिट ब्रांच ये है, तो वहां पे I1 लीव होगा। अगर यहाँ पे I2 करंट एंटर हुआ, तो यहाँ पे कितना करंट लीव होने वाला है, I2। तो जंक्शन को आप सेपरेट कर दो, क्योंकि ब्रांच ही सेपरेट हो गए। सो एट द जंक्शन सेपरेट द ब्रांच। अगर आप ब्रांच को सेपरेट कर रहे हो तो फिर आपका आंसर कैसा रहेगा, देखो ए बी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो दिखाना है, तो ए बी हो गया। ओके, ए ब्रांच हो गई, तो ए फर्स्ट हो गई, ये जंक्शन पे से हो गया। ओके, ऊपर की ब्रांच को आपको ड्रॉ करना है, तो फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और इसको आपने सेपरेट कर दिया। देखो यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे आप दिखा देना, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेपरेट हो जाएगा ये। नाउ इट इज इजी, सी सीरीज पैरेलल पैरेलल सीरीज पैरेलल। ओके, तो इस मतलब सभी काउंट करना, तो आपका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस RAB का हो जाएगा। मैं आपको आंसर लिख के देता हूँ, आप घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो देन यू गेट द आंसर 5R by 6. What is this answer? 5R by 6. तो ऐसा कुछ आपका आंसर रहता है। इसमें 6 अपोजिट नहीं लिख दिया ना, देख लेता हूँ। नहीं, इसमें तो यही लिखा, तो ये आता होगा, ठीक है। सो नाउ दैट इज 6R by 5 and here it is 5R by 6. So whenever the perpendicular line is given to you, then you just using this type of case. See, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो इजी मेथड है, यहाँ पे डायरेक्टली रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर परपेंडिकुलर लाइन के केस में आपको मिरर का यूज करना है। जितना करंट एंटर होता है उतना करंट लीव होता है। और कहाँ पे अप्लाई करना है, एट द जंक्शन, क्योंकि मिरर सिमेट्री से जंक्शन सेपरेट हो जाएगा, ब्रांच सेपरेट हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम इजीली सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो नोट कर लो दोनों एग्जाम्पल को। ओके गाइस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, KCL एंड KVL इन सिमेट्रिक सर्किट।
Up to this one we discuss means we find some equivalence resistance in symmetrical circuit by the using of parallel axis symmetry and perpendicular axis symmetry, or mirror or folding symmetry. Okay, means we call it as this one. Now if this both are not applied, at that time what we are doing, see if you consider this circuit, this if you see this circuit then it's like a symmetrical. See अगर आप ये सर्किट को देख रहे हो तो आप ये सिमेट्रिकल लगेगी, लेकिन आपने अगर इसको परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ से ड्रॉ की, चलो तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5, मतलब ऐसे सिमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। पैरेलल एक्सिस आप इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो, ठीक है। सो पैरेलल एक्सिस ड्रॉ की तो भी ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10, मतलब सिमेट्रिकल तो दिख रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसे डायरेक्टली सिमेट्रिकल सर्किट में आप पैरेलल और परपेंडिकुलर जो एक्सिस सिमेट्री है वो अप्लाई नहीं कर सकते। then what we are doing actually, so here we gives us some potential, we gives us some ideal cases. Okay, how we gives this potential and current in this type of circuit? See it is symmetry, see 5 5 10 10 like this. Okay, એટલે अगर आप इतनी सर्किट कंसिडर करते हो तो इसको हम अनबैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज बोलते हैं. We discuss about व्हिटस्टोन ब्रिज in detail in later on, but you consider this type of situation. Okay, then what we are doing here in this type of cases, when the KCL and KVL in this type of circuit, we apply the KCL and KVL rule and we solve out this problem. So what we are doing, see एक्चुअल सिमेट्री है तो फिर ए रेजिस्टेंस और ए रेजिस्टेंस है, ए रेजिस्टेंस और ए रेजिस्टेंस है, मतलब अपोजिट साइड रेजिस्टेंस कैसे है, सेम है। तो मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए आप ऐसे मान के चलो, ए भी है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन एंड अक्रॉस दिस वन बोथ आर सेम, मतलब कि इस सिमेट्री में आपको ऐसा अप्लाई करना है कि वी ए सी इज इक्वल टू वी dB, पोटेंशियल डिफरेंस दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम, मतलब आप यहाँ पे x कंसिडर करो, यहाँ पे y कंसिडर करो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, x माइनस वाई हुआ, तो यहाँ पे भी इतना ही होगा, सेम टू सेम, नो चेंज। ओके, नाउ सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस हियर एंड हियर अगेन सेम, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD इज इक्वल टू CB, सो हियर VAD is equal to VCD. This is the symmetry actually. यहाँ पे asymmetry है. Potential difference across this one and this one, because see resistance and everything will be the same and these are arranged in a similar manner. So here we apply this symmetry. VAC is equal to VDB and VAD is equal to VCB and you get this answer. If the potential difference is same, then current must be the same. अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो फिर करंट भी कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, सी यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो उसका रेजिस्टेंस भी सेम ही है ना, देखो इसलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो यहाँ पे जितना करंट फ्लो होगा, मिस कर से मान लो कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, सो यहाँ पे भी I1 करंट ही फ्लो होगा। If here the current flow is I1, so here also the same current is flowing I1. If you consider here the some current is flow I2, then here also the same current is flowing I2. In this, because here whatever the potential difference, suppose V, potential difference between A and D is V, then what is the resistance, this one 10, so V upon 10 and here also V upon 10, so current is also same, current here what, V upon 10, यहाँ भी current क्या होगा, V upon 10, तो current भी same, मतलब यही सिमेट्री का यूज करना है आपको। तो अभी आपको देखो करंट इजीली मिल गया, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I2 है, तो फिर यहाँ पे I1 आ रहा है, I2 इज इनकमिंग, I1 इज आउटगोइंग, तो यहाँ पे कितना जाएगा, सो I2 माइनस I1, है ना। यूज द जंक्शन रूल हियर, एट दिस पॉइंट यूज द जंक्शन रूल, मीन्स किरचॉफ करंट लॉ, दिस इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग I2 है, आउटगोइंग I1 है, तो यहाँ पे I2 माइनस I1 जाएगा, तो अब सम करो इसका, I2 माइनस I1 प्लस I1, रिमेनिंग कितना हुआ, I2, ठीक है। यहाँ से फिर से I1 आ रहा है, I2 माइनस I1 आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 माइनस I1, इसका सम करो, I1 प्लस I2 माइनस I1, I1 कैंसल, I2 इज आउटगोइंग, दिस वे। यहाँ पे मतलब यहाँ पे टोटल कितना करंट होगा, इनसाइड इनकमिंग I1 प्लस I2, आप इसको I मान लो, तो टोटल करंट यू जस्ट कंसिडर सपोज टू बी I, आप यहाँ पे इसको I ले लो, चलो तो आपको एक रिलेशन तो डायरेक्टली मिल जाएगा,
Okay, so if you consider this one I, so at junction A, use Kirchhoff current law. Kirchhoff current law यूज करो यहाँ पे, और फिर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1. एंड यू जस्ट राइट दिस, एवरीथिंग इज बाय सिमेट्री. यू जस्ट राइट हियर by symmetry you can apply this rule. So our current distribution is like this. If the current distribution like this, and your answer is, first equation is this one. Now use the Kirchhoff voltage law in the circuit, you getting this answer. Okay, let's restart with this one, Kirchhoff voltage law, and this is the example number 3.9 from the textbook. Okay, so you just choose any one of this loop. Suppose we choose this loop. Which one? A to, आप कोई भी एक लूप ले लो, सपोज A टू D टू C टू A. ओके, सो पहले आपको करंट की साइन देनी होगी. तो लेट्स वी जस्ट गिव्स अ साइन ऑफ दिस रेजिस्टेंस. सो इन करंट मीन्स पॉजिटिव, आउट गोइंग नेगेटिव. यहाँ पे इन पॉजिटिव, आउट नेगेटिव. यहाँ पे इन पॉजिटिव, आउट नेगेटिव. यहाँ पे इन पॉजिटिव, आउट नेगेटिव. इन पॉजिटिव, आउट नेगेटिव. ओके, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है आई. तो इन positive, out negative, battery में negative and positive. So everywhere we just gives the sign. Now you just using this Kirchhoff voltage law, you get some relations. Okay, let's we find some relation in this case. तो आप एक काम करो, कोई भी लूप ले लो. चलो A D C A. So in loop A D आउटसाइड लेते हैं, आउटसाइड ले लेते हैं. A D B बैटरी A D B बैटरी है, आउटसाइड लूप लेते हैं. उसमें क्या अप्लाई करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और हमने ऐसे घूमना है. ठीक है, दिस वन. सो स्टार्ट फ्रॉम द A प्लस टू माइनस. सो माइनस करंट I2, रेजिस्टेंस 10, सो माइनस 10 I2. नाउ हियर प्लस टू माइनस, so minus current I1, resistance 5, so 5 I1. Clear? 5 into I1. Now here plus minus 2 plus, so plus 10, plus 2 minus, so minus 10, so 10 I. actually यहाँ पे कितना करंट है, I. What is this current flow through I? So I, and you just reach at the A equal to 0. Okay, now you convert this, means you just convert this relation in I1 and I2. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस this all this negative comes right hand side becomes positive. So 10 I2 plus 5 I1 plus 10 I की जगह पे रख दो आप I1 plus I2. You just replace the I by I1 plus I2. So this one and is equal to 10, is equal to 10. Now what is your final equation? 10 I2 plus 10 I2, so 20 I2, 10 I2 plus 10 I2. Okay, and 5 I1 plus 10 I1, so plus 15 I1 प्लस 15 I1. इसमें कैलकुलस मिस्टेक आई तो आपका आंसर रॉन्ग. कैलकुलस मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह से करना है. फिर से 10 I2 10 I2 20 I2, 5 I1 10 I1, so 15 I1 is equal to 10, so is equal to 10. See here the 5 is cancel out, so यहाँ से 5 कैंसिल कर दो, आपका आंसर होगा 5 3 जा, so 3 I1 plus 5 4 जा, 4 I2 is equal to 5 2 जा. So this is the equation number 1. Sorry, 1 तो है ही, इक्वेशन नंबर 2. आपको कोई और लूप सिलेक्ट करो. चलो, यू जस्ट चूज वन अनदर लूप. तो आप ऐसे 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 काउंट कर लो इसको रोटेट में, A D B C A. ओके, कोई भी लूप चूज कर सकते हो. तो लूप A D B C A. ओके, इस लूप को काउंट कर रहे हैं ऐसे. तो आपको इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है. ऐसे स्टार्ट करो, प्लस टू माइनस, सो माइनस कितना है 10 I2, 10 I2. इसमें तो सिमेट्री है, तो आप एक काम करो, A D C A इतना ही लो, A D
सी है, क्योंकि सिमेट्री है तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो सिमेट्री है, प्लस हुआ माइनस हुआ कैंसिल हो जाएगा तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, इसलिए ए लूप कंसिडर करते हैं, ए इजी रहेगा। सो प्लस 2 माइनस, सो माइनस 10i2, यहाँ से यहाँ पे चले आओ, तो +2 माइनस माइनस कितना रेजिस्टेंस 5, सो 5, व्हाट इज दिस करंट I2 माइनस I1, सो I2 माइनस I1, हियर -2 प्लस -2 प्लस, सो -2 प्लस कितना रेजिस्टेंस 5, करंट कितना I1, सो प्लस 5I1, फिर से ए पर पहुंच गए तो 0, ठीक है, तो ए पर फिर से 0। इसको सॉल्व आउट करो, मतलब सिंप्लीफाई करो, चलो, तो -10i2 -5i2 माइनस माइनस प्लस 5i1, -10i2 -5i2 माइनस माइनस प्लस 5i1 प्लस 5i1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 and 5 10i1, नेगेटिव टर्म्स राइट हैंड साइड बिकम्स पॉजिटिव, 10 and 5 15i2। तो देखो एक रिलेशन मिल गया आपको, इसमें से आप 5 कैंसिल कर दो तो फिर 2i1 इज इक्वल टू 3i2, इसका आंसर हुआ i1 इज इक्वल टू 3/2i2, इक्वेशन नंबर 3। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें अगर आप i1 और i2 को रिप्लेस करते हो तो आपको एक मिल जाएगा, उसके बाद दूसरा मिल जाएगा, उसके बाद तीसरा मिल जाएगा, ठीक है। चलो रिप्लेस करते हैं, तो इसमें आप i1 की जगह पे और रख दो, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, सो 3i1, सॉरी i1 की जगह पे तो रखना है, तो 3 × 3/2i2, ओके, प्लस 4i2, सो प्लस 4i2 इज इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू 2। फिर से 3i1 की जगह पे रिप्लेस करो, 3/2i1, सॉरी 3/2i2, 3/2i2 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। सो व्हाट यू गेट 9/2 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 2। तो इसका सिंप्लीफाई करो, 4 2 जा 8 प्लस 9 17, ओके, सो 17/2 i2 इज इक्वल टू, मतलब कि i2 कितना हो गया 4/17 एम्पियर, दिस इज i2, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर आप ये वैल्यू 3 में रखते हो तो फिर i1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू i2 की जगह पे रख दो 4/17, सो 2 कैंसल आउट, ओके, सो 6/17, सो i1 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। सो ये भी मिल गया। थर्ड पे फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट यू गेट, I इज इक्वल टू i1 प्लस i2, मतलब दोनों का सम करो, तो 6/17 प्लस 4/17, 6 प्लस 4 10/17, सो I इज इक्वल टू 10/17 एम्पियर। सो सभी करंट मिल गए। देखिए आपको तो क्या चाहिए, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ईच ब्रांच मतलब एडी, मतलब सभी ब्रांच में। तो एडी में कौन सा करंट है I2, एसी में कौन सा करंट है I1, डीसी में कौन सा करंट है I2 माइनस I1, ओके। तो आप सभी ब्रांच से करंट आप खुद से फाइंड कर लेना होमवर्क में। ए बी ब्रांच का करंट, उसके बाद डी बी ब्रांच का करंट, उसके बाद ए सी ब्रांच का करंट, सी बी ब्रांच का करंट, डी सी ब्रांच का करंट, ओके। सभी करंट्स जो है जितने भी फाइंड करने, यहाँ पे मैंने लिखी है कौन से करंट है, यहाँ पे जो भी है वहाँ पे वो लिख दें, ठीक है। मेन जो 3 कैलकुलेशन थी वो हमने कर लिए, क्लियर है। तो पूरा एग्जाम्पल है वो नोट कर लो। और सिमेट्री में है इस तरह से, पहले आपको इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट, वी कॉल इट इज इक्विपोटेंशियल पॉइंट। तो सिमेट्रिकल सर्किट में इक्विपोटेंशियल पॉइंट आपको ऐसे, मतलब जहां पे सिमेट्री बनती है वहां पे इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह का इक्विपोटेंशियल पॉइंट फाइंड करो, ठीक है। उसके बाद आपको सेम करंट ऐसे फ्लो करके आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। नोट करो एग्जाम्पल को।